Yes, yes, uncle. We can hear you. Yeah, so I just want to share a word from Second Chronicle chapter 16, verse 8. दूसरा इतिहास इसका 16 अध्याय उसके 8वें वचन से मैं कुछ बांटना चाहता हूँ. Verse 9, sorry, verse 9. उसका 9वां वचन. For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that he may strongly support those whose heart is completely his. वहां लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए. I believe the eyes of the Lord is going through all over India. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की जो नजरें है, उसकी दृष्टि जो है पूरे भारत भर में घूमती है. all over us who are in this Zoom meeting. हम सबों पर उसकी दृष्टि है जो इस जूम सभा में जुड़े हैं. It's written, it's a very encouraging word, that he may support not everybody, but those whose hearts are completely his. और ये बहुत ही दिलचस्प शब्द वचन है कि वो उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए, सबके लिए नहीं बल्कि उनको, उनके लिए जिनका मन पूरी तरह से उसका है. It's a indescribably great thing if God can support me. ये एक वर्णन से भी ज्यादा अवर्णनीय ऐसी महान चीज है अगर परमेश्वर मेरा सहारा, मेरा समर्थन कर सकता है तो. He knows those people whose heart is completely his. वो उन लोगों को जानता है जिसका मन, जिसका हृदय पूरी तरीके से उनका है, परमेश्वर का है. And he is looking for different opportunities that he may support and strengthen such people. और वो अलग अलग मौके देखता है कि कैसे वो इन लोगों का समर्थन कर सके, उनको सहयोग दे सके. This is not true if my heart is divided. ये तब सच नहीं है अगर मेरा हृदय बटा हुआ है तो. But the most encouraging thing is what we read in Acts 17:30, where it's written. पर सबसे प्रोत्साहन भरी बात वो है जब हम प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय के 30 वचन में ये लिखा हुआ पढ़ते हैं. It's written that God has overlooked the times of ignorance. God is now declaring to men that all people everywhere should repent. इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है. So if any of us are divided in heart, there's hope for us also. और इसलिए अगर हम में से कुछ है जिनका मन या जिनका हृदय बटा हुआ है, पूरी तरीके से परमेश्वर का नहीं है, तो हमारे लिए भी आशा है. Provided we really repent and turn to God. अगर हम वाकई में मन फिराते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो. How can I know that my heart is completely his? मैं कैसे जान सकता हूं कि मेरा हृदय पूरी तरीके से उसका है या नहीं? In the ordinary decisions, matters of life, it becomes so evident. हमारे जीवन के बड़े साधारण प्रतिदिन के मामलों में और उनके निर्णयों में ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाता है. Look at the decisions we have taken today. Look at the decisions we have taken last week. It is clear whether our heart is completely for God, or are we having a divided heart. उन निर्णयों को देखिए जो हमने आज लिए, उन निर्णयों को देखिए जो हमने बीते हफ्ते में लिए. ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हमारा हृदय बटा हुआ है या पूरी तरीके से परमेश्वर का है. If our heart is completely for God, God is looking for such people whose heart is completely his. He is longing to support such people. अगर हमारा हृदय पूरी तरीके से परमेश्वर का है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, उसकी हृदय लालसा रखता है कि ऐसे लोगों का वो समर्थन करे, उनको सहारा दे. There is a verse in Proverbs 4:23. नीति वचन 4:23 में हम पढ़ते हैं. It's written, watch your heart with all diligence, for out from it flow the springs of life.
वहां हम पढ़ते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। We in Living Bible, it's written like this: watch your thoughts with great carefulness, because your entire future life depends on the type of thoughts you entertain. और जो लिविंग बाइबल है, जो एक भाव अनुवाद है, वहां इस प्रकार लिखा गया है। अंकल विच वर्स? Same verse 4:23. I don't know whether it's Living Bible or some other translation I've read, or whether it's Good News Bible. It's written like this: watch your thoughts with all diligence. Your entire future life revolves around that. Something like that. एक ऐसा भाव अनुवाद है जिसमें लिखा है कि तुम्हारे जो विचार है, पूरे ध्यान उस विचारों पर दो कि तुम्हारे विचार कैसे है, क्योंकि तुम्हारे आगे का पूरा जीवन, पूरा भविष्य उसी पर निर्भर है। So just imagine how I'm going to be after 1 year, after 3 years. All depend on the type of thoughts and decisions I take today. और कल्पना करके देखिए कि मैं 1 साल बाद कैसे रहूंगा, 3 साल बाद कैसे रहूंगा। ये सब निर्भर है कि मेरे आज के विचार कैसे हैं, मैं आज निर्णय कैसे लेता हूं। As somebody said, in every decision, something inside our central being is being turned. Is being turned. और जैसे किसी ने कहा है, हमारा प्रत्येक जो निर्णय होता है उसमें मानो हमारे अस्तित्व के अंदर ऐसा कुछ है जो बदलता है। Either we are becoming more like Jesus or we are becoming more like Satan. या तो हम अधिक और अधिक यीशु जैसे बन रहे हैं, या तो हम अधिक और अधिक शैतान जैसे बन रहे हैं। Whether you like it or not, whether you want to be like Jesus or not, all that matters is the simple small decisions you take. You are actually being evolved to become like Jesus or become like Satan. आप चाहे या ना चाहे, आप यीशु जैसा बनना चाहे या ना चाहे, पर प्रत्येक छोटे से छोटे निर्णय में जो आप लेते हैं उसमें आप रूपांतरित हो रहे हो, या तो यीशु जैसे आप बन रहे हो या शैतान जैसे बन रहे हो। We read this verse, Jesus said about those who follow him. हम इस वचन को पढ़ते हैं जो यीशु ने उन लोगों के विषय में कहा जो उसका अनुसरण कर रहे हैं। John chapter 2 verse 24. यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 24 वचन। Written, Jesus on his part was not entrusting himself to them, for he knew all men, because he did not need anyone to testify concerning man, for he himself knew what was in man. यूहन्ना 2:24 और 25। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था, और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। Just think of what is written. I have to ask this question to myself: can Jesus commit himself to me? और सोचकर देखिए यहाँ क्या लिखा है। मुझे ये प्रश्न अपने आप से पूछना है कि क्या यीशु मसीह अपने आप को मुझ पर भरोसा रख सकता है, मुझ पर सौंप सकता है क्या? See, he came 2000 years ago. He committed himself totally to his disciples. जब वो 2000 वर्षों पहले यहाँ आया था तो उसने पूर्ण तौर पर अपने आप को अपने शिष्यों के प्रति समर्पित किया था। There were many others who are following him. He did not commit himself to them. ऐसे कई और थे जो उसका पीछा कर रहे थे, पर उसने अपने आप को उनके प्रति समर्पित नहीं किया। Because he knew what was the main motive of their heart. क्योंकि वो जानता था कि उनके हृदय का मुख्य इरादा या मकसद क्या है। He knew that their heart, as we read earlier, was not completely for him. वो जानता था कि उनके जो हृदय है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, कि वो पूर्ण तौर पर उसके नहीं है, उसके लिए नहीं है। Their real intention was something else. उनका असली मकसद तो कुछ और ही था। And in the ordinary decisions of life, it became manifest. और जीवन के साधारण निर्णयों में वो बिल्कुल साफ हो गया, प्रकट हो गया। We again read this verse in Isaiah 66. हम फिर एक बार यशायाह उसके 66 में एक और वचन पढ़ते हैं, Verse 2. तो दूसरा वचन Is written, for my hand made all these things. Thus all
these things came into being, declares the Lord. But to this one I look, to him who is humble and contrite of spirit and who trembles at my word. यशायाह 66 उसका दूसरा वचन, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए यह सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो. Just imagine this word, it's written, to such a one God is looking. इस वचन के बारे में सोचकर देखिए कि मैं ऐसा एक व्यक्ति है जिस पर परमेश्वर की दृष्टि है. Of all the people who are in the Zoom, God is looking for such a person. हम जो सारे लोग इस जूम में सहभागी हुए हैं, आज इस जूम से जुड़े हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है. Am I humble? क्या मैं नम्र हूँ? Am I contrite in spirit? क्या मैं मन में खेदित मन का हूँ? Am I trembling at God's word? क्या मैं परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराता हूँ? What is the meaning trembling? It's not a literal trembling. अब इस थरथराने का क्या मतलब है? ये नहीं कि हम शारीरिक तौर पर थरथराते हैं. It means how diligent am I to obey God's word? इसका मतलब ये है कि कितना मैं कोशिश करता हूँ, तुरंत तत्परता दिखाता हूँ परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने के लिए. If the Holy Spirit tells me something, say ask me to ask forgiveness to somebody or tell something to somebody, how diligent am I to obey? अगर पवित्र आत्मा मुझसे कुछ कहता है कि मैं किसी से कुछ बात कहूँ या किसी से क्षमा मांगू, तो कितने मेहनत से, कितने जल्द से मैं वो करने को तैयार हूँ, उसकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ. If I dilly-dally over it, I say, okay, I'll do that. And we just postpone it. God is not looking for such people. अगर हम उस चीज को थोड़ा अपना ही समय लेकर हम सोचते हैं ठीक है हम इसे कल पर ढकेलते हैं, आगे ढकेल देते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं खोज रहा. There is a phrase written about the foolish virgins. Foolish virgins, they are not going to hell, but we can say they are not really the people whose heart is completely for God. और मूर्ख कुंवारियों के विषय में ऐसा लिखा है, ये मूर्ख कुंवारियां वो नहीं है जो नर्क जाती है, पर उनके विषय में हम ये नहीं कह सकते कि उनका हृदय पूरी तौर पर परमेश्वर का है. There is a phrase written in Matthew 25. It's written, afterwards they came. और मत्ती 25 में ऐसा लिखा है कि बाद में वे आई, ऐसा लिखा गया है. It becomes a pattern of life in their life. No immediate obedience. I'll do it later. No, like it's a matter of postponing everything. और उनके जीवन में ये एक आदत बन जाती है कि वे कभी भी तुरंत आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उसको आगे ढकेलते रहते हैं. ठीक है मैं बाद में करूंगा, ऐसा कहकर वो उसे आगे ढकेलते हैं. Say for example, if I speak a harsh word to my wife, उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपने पत्नी से कोई कठोर शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो, or to my husband, and the Holy Spirit says, please ask forgiveness. या मेरे पति के प्रति किसी कठोर शब्द का अगर मैं इस्तेमाल करूं और पवित्र आत्मा मुझसे कहे कि तुम्हें क्षमा मांगनी है, and if my attitude is okay, I'll do it, and I just dilly-dally over it, I believe then I'm not trembling at God's word. और अगर मेरा रवैया ऐसा है कि ठीक है मैं करूंगा, कुछ समय बाद मैं करूंगा, और उसको मैं अगर आगे ढकेलते रहता हूं, तो फिर मेरा रवैया ये नहीं है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर मैं थरथराता हूं. If you read Mark chapter 1 and 2, अगर मरकुस पहला अध्याय उसके पहले 2 वचन को हम पढ़े तो, not chapter 1 and 2, मरकुस उसके पहले 2 अध्यायों को पढ़े तो, we can see this particular phrase written, immediately they did it. और वहां हम एक चीज पढ़ा हुआ, एक चीज बार बार आती है जिसे हम पढ़ते हैं कि उन्होंने तुरंत ये किया. Jesus called them and it's written, immediately they obeyed. यीशु ने उन्हें बुलाया और लिखा गया है कि तुरंत उन्होंने उसकी आज्ञा मानी. You go through that, I don't have time to show. There are many places in
Mark chapter 1 and 2 is that particular word is used immediately. और आप इसे बाद में पढ़ सकते हो, आप समय नहीं है सब वचन देखने का, कि कई बार मरकुस रचित सुसमाचार पहले 2 अध्यायों में लिखा गया है कि तुरंत उन्होंने ये किया। That they are the people who tremble at God's word. ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से थरथराते हैं। That is why Jesus could commit himself to such people. इसी वजह से परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपने आप को सौंप पाया। That should be my desire, Lord. I want you to commit yourself to me. ये मेरी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तू अपने आप को मुझे सौंप दे। Let's read this verse in Hebrews chapter 4, इब्रानियों के पत्र उसके 4 अध्याय में हम पढ़ेंगे, verse 13. का 13 वचन। It's written, there is no creature hidden from his sight. All things are open and laid bare to the eyes of him with whom we have to do. वहां लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उनकी उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। Just see what is written. There is nothing in my life that is hidden to him. He is watching all the small decisions. God is watching all the small decisions I take. और देखिए यहाँ ये लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में जो उससे छिपा हुआ है। परमेश्वर प्रत्येक छोटे से छोटे निर्णय को देखता है जो मैं ले रहा हूँ। I might have told this incident. What Sadhu Sundar Singh saw a vision of a young person alone in a room doing something. He thought nobody is watching, but Sadhu Sundar Singh was telling if only his eyes were open. और मैंने शायद ये पहले भी बताया है कि साधु सुंदर सिंह एक दृष्टांत के बारे में बताते हैं कि एक जवान व्यक्ति था, वो अपने बंद कमरे में कुछ कर रहा था, उसे लग रहा था कि कोई उसे नहीं देख रहा था, और साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि अगर उसकी आंखें खुली होती तो that room there were because of the wrong decision he was taking, demons were dancing, angels of God were weeping, Jesus himself was watching him, saints of the Most High were watching him. If only his eyes were open to see that, he would have not done that. अगर उसकी आंखें खुली होती तो वो ये देख पाता कि उसके गलत निर्णय की वजह से उसी के कमरे में दुष्ट आत्माएं जो है वो नाच रही थी, स्वर्गदूत जो है वे रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, खुद यीशु मसीह और परमेश्वर देख रहा था, और परम प्रधान के जो संत है वे सारे देख रहे थे। अगर वो ये सारी चीजों को जानता, उसकी आंखें खुली होती, तो शायद वो ये न करता। I just want to show you some examples of people from God's word to whom God could really commit himself. और मैं परमेश्वर के वचन से ऐसे कुछ उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ ऐसे लोगों के विषय में जिनके प्रति परमेश्वर अपने आप को उनको सौंप पाया, समर्पित कर पाया। In their life we can see how immediately they wanted to obey God. उनके जीवन में हम ये देख पाते हैं कैसे तुरंत वो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते थे। In their life we can see that God was supporting them every way possible. उनके जीवन में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर प्रत्येक जैसे संभव हो वैसे उनका समर्थन कर रहा था, उनको सहारा दे रहा था। In their life it's very evident in the small decisions of life they were taking decisions honoring God. उनके जीवन में बिल्कुल साफ था कि उनके जीवन के छोटे छोटे निर्णय में वो ऐसे निर्णय लेते थे जो परमेश्वर को आदर लाते थे। Just take the life of Joseph. यूसुफ का उदाहरण, यूसुफ का जीवन देखिए। I'm just telling some of the incidents in his life. I hope all of you know that story of Joseph. उसके जीवन के कुछ घटनाओं को बता रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब यूसुफ की कहानी को जानते होंगे। Even when he was as young man, he was seeing the dreams which had he was seeing visions which had far-reaching effects. जब वो एक जवान ही लड़का था तब भी वो ऐसे स्वप्न देख रहा था, ऐसे दृष्टांत देख रहा था जिसके आगे लंबे समय बाद नतीजा या परिणाम दिखने वाला था। He was not seeing dreams, any filthy dreams or anything, but
where he's seeing dreams where God is present. उसे कोई गंदे सपने नहीं आ रहे थे, बल्कि वो ऐसे सपने देख रहा था जहां परमेश्वर उपस्थित था। We know that when he told about his father, mother, and other brothers one day going to worship, fall down before him, that brothers were very jealous of him. और हम जानते हैं कि जब उसने उस स्वप्न को बताया कि जब उसके एक समय आएगा, उसके माता पिता और सारे भाई उस पर उसके सामने भूमि पर पड़कर उसको दंडवत करेंगे, तो ये सुनकर उसके भाई उससे बहुत जलने लगे। After that, the father told him to his brothers went to look after the sheep, and father told him to just go in search of them and give them some food. उसके बाद उसके भाई जो है भेड़ों को चराते चराते कहीं चले गए थे, और उसके पिता ने उससे कहा कि तुम उनके पीछे जाकर उनके लिए कुछ भोजन ले जाओ। He was searching them in a place called Shechem, और शिकेम नामक जगह में वो उन्हें ढूंढ रहा था, and he could not find them. और वो उनको ढूंढ नहीं पाया, खोज नहीं पाया वहां। Did he come back and say, "Oh, I searched quite a lot. I could not find." Okay, he didn't drop that idea and just came back. क्या वो लौट कर आकर अपने पिता को उसने ये कहा क्या कि मैंने उनको काफी खोजा पर मुझे नहीं मिला? नहीं, उसने तुरंत वहीं अपनी खोज रोक नहीं दी। Then one person said that they went to Dothan, and he was ready to go all the way there. और फिर एक व्यक्ति ने उसे कहा कि मैंने देखा है कि तुम्हारे भाई जो है वो दोतान में गए हैं, तो वो बिल्कुल तैयार हो गया वहां तक जाने के लिए। We can see there a young man, when a task is given, he was doing it with all his heart. और यहाँ हम एक ऐसे जवान लड़के को देखते हैं, जब उसको कोई काम दिया गया था तो वो अपने पूरे हृदय के साथ उसे कर रहा था। God was watching him. परमेश्वर उसे देख रहा था। God, when he watches such a person, he has got plans for him. परमेश्वर जब ऐसे व्यक्ति को देखता है तो उसके बारे में वो योजनाएं रखता है। There is a verse in Proverbs 37:12. नीति वचन Proverbs 22:29. Sorry. नीति वचन Proverbs 22:29. नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 29 वचन। Is written, "Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men." वहां लिखा, यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। Just God was seeing that this man was totally diligent in his work, and God later on made him stand before kings. परमेश्वर ने देखा एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम काज में बिल्कुल निपुण है, बिल्कुल मेहनती है, और आगे जाकर परमेश्वर ने ये किया कि वो राजाओं के सामने खड़ा हुआ। Today the kings are God's people. They are the kings and priests. और आज राजा जो है वो परमेश्वर के लोग हैं, वही राजा और याजक है। God wants us, each one of us, to be of help to so many others. परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक कईयों के लिए एक सहायता बने। I'm not saying to stand and preach, that forget about that, but we can be of help to so many people. मैं ये नहीं कह रहा कि हम उठकर प्रचार करें, पर हम कितने लोगों के लिए एक सहायता बन सकते हैं। Source of edification, consolation, encouragement. That means we can say words of prophecy to them. और हम उनके लिए, लोगों के लिए भविष्यवाणी के वचन कह सकते हैं, उनको सांत्वन देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम शब्दों को या वचनों को कह सकते हैं। And he is looking for people who are, when a task is given, they do it totally, wholeheartedly. और परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है, जब उनको कोई काम दिया जाता है तो वो पूरे हृदय से उस काम को करते हैं। See, there are sometimes there are people who, when a task is given in the church, they do it really with tremendous with a full heart.
और ऐसे लोग होते हैं कि जब उनको कलीसिया में कोई काम या जिम्मेदारी दी जाती है, वो पूरे हृदय के साथ उसको पूरा करते हैं। That is good. वो अच्छा है। But if a task is given at home and if we just do it slipshod way, that proves that we are uh, we are doing tasks not for God, but just for the honor of people. पर अगर कोई काम घर पर दिया जाता है और उसे हम बिल्कुल बिल्कुल सावधानी से नहीं करते, ऐसे ही कर देते हैं, तो फिर ये साबित करता है कि हम चीजों को केवल लोगों के सामने कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने नहीं कर रहे। God is watching everything. परमेश्वर सारे चीजों को देखता है। Again, we can see that after some time, how he faced that temptation of Potiphar's wife. और कुछ समय बाद हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कैसे पुतिपर के पत्नी के से आने वाले प्रलोभन का उसने सामना किया। How immediately, how quickly he was ready to run away from a tempting situation. कितने जल्दी, कैसे तुरंत वो तैयार हो गया कि एक प्रलोभन भरे जगह से वो तुरंत भागकर निकल जाए। See, when we read newspaper, when we are sitting before computer, we see sometimes in newspaper we can see a provocative news. जब हम अखबार पढ़ते हैं या हम इंटरनेट के सामने बैठते हैं, कभी कभी हम ऐसे अखबारों में हो सकता है हम ऐसे समाचार पढ़ते हैं जो बहुत ही प्रलोभन लाने वाले ऐसे हो सकते हैं, उकसाने वाले हो सकते हैं। I remember 2 days ago I was reading there was one report which looked attractive, and as soon as my eyes went there, I heard the Holy Spirit telling, I don't want you to read that. और मुझे याद है 2 दिनों पहले अखबार में ऐसा ही कोई समाचार था, वो दिखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। जैसे ही मेरी नजरें वहां गई, पवित्र आत्मा ने बताया, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे पढ़ो। Just imagine we are sitting before the computer, some scene comes or some picture comes. We can see God is watching whether we are like Joseph running away from temptation. सोच कर देखिए, हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, कोई सीन आता है, कोई चित्र आता है, परमेश्वर हमें देख रहा है। क्या हम यूसुफ के जैसे हैं जो वहां से उठकर उस प्रलोभन से दूर भागते हैं? And afterwards, it's written of Joseph that Potiphar knew that God was with him. He was prospering in wherever he laid his hand, that began to prosper. और यूसुफ के विषय में ये लिखा है कि उसका जो स्वामी पुतिपर था, उसने ये देखा कि यूसुफ जो काम वो करता था उसको प्रभु उसके हाथ से सफल कर देता था। When he was years later, he was in prison. जब कई साल बाद वो बंदीगृह में था, when two of those servants of Pharaoh came there, cupbearer and baker. और फिरौन के जो 2 सेवक जब वहां आए, उसका पिलौनेहारा और खिलौनेहारा जब वहां आया, they saw a dream, and in the midst of all his problems, he was more concerned about that these 2 people were sad, and he was asking them and trying to help them. और जब वो 2 लोगों ने एक स्वप्न देखा था, तो इसके सारे दुखों में भी वो उन लोगों के पास आकर देखता है कि उनसे पूछता है कि वो क्यों दुखी है। In all these decisions, please remember this is what I think C.S. Lewis said. Something in the middle of our heart is turning, either making us more like Jesus or more like Satan. इन सारे निर्णयों में यही सीएस लुइस ने ये कहा था कि प्रत्येक निर्णय जो हम लेते हैं उसके अंदर कुछ है हमारे अंदर जो बदल जाता है, या तो हम यीशु जैसे बनते हैं या शैतान जैसे बनते हैं। We can see in Luke chapter 16 this word. हम लूका 16 में इस वचन को पढ़ते हैं। Verse Luke chapter 16. Verse 11, it's written, if you have been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust you to riches to you? If you have not been faithful in the use of that which is another, who will entrust to you that which is your own?
And it's also verse 10 also, he who is faithful in the very little thing is also faithful in much. He who is unrighteous in the very little thing is also unrighteous in much. और Verse लूका 10, 11 and 12. लूका 16 उसके 10 से लेकर 12 में हम पढ़ते हैं, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, या इंग्लिश में लिखा है विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? In the small decisions of life, what is written? He who is faithful in the small things is also faithful in much. हमारे जीवन के छोटे से छोटे निर्णयों में वहां लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत या अधिक में भी विश्वास योग्य होगा। That means where if we are faithful in the areas where no man sees, that is where God declares that he is totally faithful. इसका मतलब जिन क्षेत्रों में हमें कोई नहीं देखता, वहां परमेश्वर हमें देख रहा है कि हम पूर्ण तौर पर विश्वास योग्य है या नहीं। It is possible to be faithful in the big things. Big things are things which everybody sees. ये संभव है कि हम बड़ी बातों में विश्वास योग्य रहे। बड़ी बातें वो होती है जो सब कोई देखता है। But when we are not so faithful in the small things, that is a proof that we are interested more in the honor of man than the honor of God. पर जब हम छोटी चीजों में सतर्क नहीं, विश्वास योग्य नहीं होते, तो ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के आदर प्राप्त करने से ज्यादा मनुष्यों से आदर प्राप्त करने में दिलचस्पी रखते हैं। I think all of you know the story of Ruth. मेरे हिसाब से आप सब रूथ की कहानी को जानते हो। We know that we read that in Ruth chapter 1. और रूथ की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। We saw that this Elimelech and Naomi, they went to Moab because of the famine in Bethlehem. और हम यहाँ पढ़ते हैं कि एलीमेलेक और नाओमी जो थे, वो बेथलेहम देश में अकाल पड़ा, इसलिए वो मोआब नगर में जाते हैं with two of their children, उनके दो बच्चों के साथ। and they married Ruth and Orpah. और उन्होंने वहां जाकर रूथ और ओरपा से विवाह किया। And after many years, Elimelech and the two sons died. और कई वर्षों बाद एलीमेलेक और उसके दो बेटों का उनकी मृत्यु हो गई। And Naomi was deciding to come back to Bethlehem. और नाओमी ने निर्णय लिया कि वो लौटकर बेथलेहम में आएगी। And he told his daughter-in-laws to go back to their native places. और उसने अपने दोनों बहुओं को कहा कि तुम अपने घर चले जाओ। See, at that moment, that decision made all the difference in the life of these two people. और उस समय जो निर्णय उन्होंने लिया, उससे उनका पूरा जीवन बदल गया, ये दो लोगों का। We can see this verse, what Ruth replied in chapter 1 and verse 16. रूथ की पुस्तक पहले अध्याय के 16वें वचन में हम देखते हैं कि रूथ ने क्या जवाब दिया। I believe that she might have heard from Naomi about the living God in Israel, and that she saw that the God whom Naomi is serving is a completely different God from what she saw among her relatives. मेरा विश्वास है कि रूथ ने नाओमी से सुना होगा कि इस्राएल में एक जीवित परमेश्वर है, और उसने सुना होगा कैसे जो जीवित परमेश्वर है इस्राएल का, वो बिल्कुल अलग है उन देवताओं से जिनकी आराधना ये अपने रिश्तेदारों के साथ किया करती थी। And she decided, whatever it matter, I want to find this true God. और उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस सच्चे परमेश्वर को खोजना चाहती हूँ। And you can see in that reply that she is making in verse 16, do not urge me to leave you or turn back from following you. Where you go, I'll go. Where you lodge, I'll lodge. Your people shall be my people, your God, my God. That means she was interested, really seeking for the true God. और रूथ के उत्तर में ये बिल्कुल साफ हो जाता है। 16वें वचन में रूथ कहती है, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। You can see in verse 17 also, where you die, I'll die. There I'll be buried.
Thus may the Lord do to me, and worse, if anything but death parts you and me. और 17 वचन में वो ये भी कहती है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं तुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा ही वरन उससे भी अधिक करे। What she was actually telling is, I am determined to find this God. Unless I find him, I know that I can find in the land of Israel this true God, and I'm determined to find that person. वास्तविकता में रूत ये कह रही थी कि मैंने पूरे मन से ठान लिया है कि मैं इस सच्चे परमेश्वर को खोज कर रहूंगी। मैं जानती हूँ कि इसको मैं केवल इस्राएल में ही खोज सकती हूँ, और वहां मैं उसे खोजूंगी। You know, I think all of you know what that just before his conversion, the decision Sundar Singh made, Sadhu Sundar Singh made, that if this true God is not revealing to me, I'm going to die. I'm going to put my head before this train which is going 4 o'clock early in the morning, and I'm going to die. He was desperate for the living God. और शायद आप सब उस निर्णय को जानते हो जो साधु सुंदर सिंह ने उनके नए जन्म से कुछ ही समय पहले लिया था। वो जब सच्चे परमेश्वर की तलाश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर ये सच्चा परमेश्वर अपने आप को मुझ पर प्रकट नहीं करता, तो मैं इस पटरी पर लेट कर मैं अपनी जान दे दूंगा। God is looking for such people who are desperate, whose heart is totally for him. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आतुर है, जिनके हृदय पूर्ण तौर पर परमेश्वर के हैं। We can see in chapter 2 how God was supporting Ruth. हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर रूत का समर्थन कर रहा था, उसका सहारा दे रहा था। She was trying to earn some money by going to some field. वो कुछ खेतों में जाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। We can read that in chapter 2. दूसरे अध्याय हम पढ़ते हैं। We can see in verse 3, she departed and went and gleaned in the field after the reapers, and she happened to come to the portion of the field belonging to Boaz, who is in the family of Elimelech. और तीसरे वचन में लिखा है, इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलिमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। See, just think of that phrase that is written. She happened to come to that portion. और देखिए वहां क्या लिखा है कि वो संयोग से वहां आई। See, God was supporting her, and we know all what happened, how she became the great. She became in the family of David, and also she became in the family of Jesus Christ. और परमेश्वर उसका समर्थन कर रहा था। हम जानते हैं कि आगे उसके साथ क्या हुआ कि वो दाऊद के परिवार में आई, और आगे जाकर यीशु मसीह के भी परिवार में वो थी। We see later on what Boaz was telling, how diligent she was in working and supporting her mother-in-law. और आगे जाकर हम देखते हैं कि बोअज भी उसके विषय में क्या कहता है कि वो कितनी मेहनती थी काम करने में, और अपने सास को वो समर्थन देने की कोशिश कर रही थी। We can just think of David also. You know, David was out in the field. He was just looking at the sheep. और दाऊद के विषय में भी हम देखते हैं, वो बाहर खेतों में था, वो भेड़ों को चरा रहा था। All his older brothers were in military service. उसके सारे जो बड़े भाई थे वो सेना में थे। But you know what God said in 1 Samuel chapter 16 verse 6. पर पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 6 वचन में परमेश्वर ने ये कहा, chapter 16 verse 7, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees. For man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. पहला शमूएल 16:7, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। I believe when he was out in the field, how diligent he was at work. We know those incidents where he was, when some lion came and tried to grab some of the sheep, how he went after the lion,
caught hold of the lion, got those sheep's back. And God was watching everything. और मेरा विश्वास है कि जब दाऊद उन भेड़ों को चरा रहा था, तब परमेश्वर सारी चीजों को देख रहा था। कैसे जब सिंह उसके पीछे उस भेड़ बकरियों के पास आता था, तो कैसे ये उनको उनसे हाथ से छुड़ाता था और भालू के हाथ से और पंजों से उसे छुड़ाता था। परमेश्वर इन सारी चीजों को देख रहा था। And as is written, man looks at outward appearance, God is looking at the heart. और जैसे लिखा है कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु प्रभु अंदर हृदय को देखता है। You know, when David was all that happened, he happened to come to that battlefield where Goliath was there, and how Saul heard of him, and David went with just 5 stones and a sling, and with just 1 stone he killed that Goliath. और आगे हम जानते हैं क्या हुआ कि जब दाऊद वहां शाऊल के पास गया और जब गोलियत उनको ललकार रहा था, तो केवल 5 पत्थर लेकर वो गोलियत से लड़ने गया और उसने गोलियत को मारा। With 1 stone, even a normal person will not die, but it was God who was supporting David all the way, even in the death of Goliath. और एक पत्थर से तो साधारण व्यक्ति की भी शायद मृत्यु ना हो, पर वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद का पूर्ण तौर पर समर्थन कर रहा था। Years later, when David was an old man, कई वर्षों बाद जब दाऊद एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया था, he told this to his son Solomon. उसने अपने पुत्र सुलेमान से ये कहा। I want to show this verse in First Chronicles chapter 28 verse 9. पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसके 9वें वचन में मैं ये वचन आपको दिखाना चाहता हूं। As for you, my son Solomon, know the God of your father and serve him with the whole heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts and understand every intent of thoughts. If you seek him, you will let him find him. If you forsake him, he will reject you forever. पहला इतिहास 28 अध्याय 9 वचन। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। Just if Solomon was diligent to just follow this one advice of David, it would have made all the difference in his life. अगर सुलेमान मेहनत करके ये एक सलाह जो दाऊद ने उसे दी थी उसे मानता, तो उसका पूरा जीवन अलग होता। To know God, to serve him, and to live before him, to really be faithful in all the small decisions of life, his life would have been different. वो परमेश्वर को जाने, उसके सामने जिए, उसकी सेवा करे और सारे निर्णयों में अगर वो ये देखता तो उसका जीवन बिल्कुल अलग होता। I just want to show you one decision which Solomon took. मैं आपको एक निर्णय दिखाना चाहता हूँ जो सुलेमान ने लिया। That is written in 1 Kings chapter 6. और वो पहले राजाओं की पुस्तक उसके 6 अध्याय में लिखा है। You can see the last sentence written. 1 Kings chapter 6, last sentence is written. It took 7 years for Solomon took 7 years to build the temple. पहला राजा 6 अध्याय उसका अंतिम जो वाक्य है 38 वचन का अंतिम भाग, इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में या उसका घर बनाने में, उसका भवन घर नहीं, टेम्पल बनाने, सॉरी उस मंदिर को बनाने में 7 वर्ष लगे। And we can see in chapter 7 verse 1, Solomon was building his own house in 13 years. और पहला राजा 7वां अध्याय पहले वचन में हम देखते हैं कि सुलेमान ने अपना महल बनाया, उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। You can see very clearly for what he gave prominence, what he gave importance. और यहाँ हम बिल्कुल साफ तौर पर देख पाते हैं कि किस बात को उसने अहमियत दी, किस बात को वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझता था। 7 years for the temple, 13 years for his palace.
मंदिर के निर्माण में 7 वर्ष, अपने महल के निर्माण में 13 वर्ष। See, I shared earlier, in the small decisions of life, it is evident, is absolutely clear where our heart is. मैंने शुरुआत में ये बांटा था कि हमारे जीवन के छोटे निर्णयों में ये साफ हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारा हृदय कहाँ है। And if we can be honest, if we can truly repent and say, Lord, my heart is divided, and then God can really forgive us, and we have to take a decision. Lord, I want to serve you with my full heart. God is only looking for such people. अगर हम ईमानदार होकर परमेश्वर के सामने मन फिराकर ये कबूल करते हैं कि प्रभु मेरा हृदय बटा हुआ है, तो फिर और ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं पूरे इस तरीके से अपना हृदय तेरे लिए रखना चाहता हूँ। I believe God spoke to Solomon many years that you are neglecting my house, giving twice or thrice the more importance to your palace. और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने कई 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 बार सुलेमान को बताया होगा कि तू मेरे मंदिर की उपेक्षा करके, उसको नजरअंदाज करके, उससे दुगना तिगना ध्यान अपने ही महल पर लगा रहा है। Somebody said, if we have got a straight line, you can deviate from that line just 1 millimeter, but as you go ahead, you will be going farther and farther away from that straight line. और किसी ने कहा है कि जब हमारे पास कोई सीधी लाइन होती है, उससे शायद हम केवल 1 ही मिलीमीटर से दूरी से अगर हम भटक जाए, तो जैसे हम उस दूर जाते हैं उतना ही जितना हम आगे जाते हैं उतना ही हम उस लाइन से दूर चले जाते हैं। We can see this verse in Colossians chapter 3. कुलुस्सियों के पत्र उसके 3 अध्याय में हम इस वचन को देखते हैं। It's written to slaves, verse 22. और ये गुलामों के लिए ये वचन है। Actually, in today's language, the right word is to all those who work in the office or wherever you are, or maybe you are a student. We can take to all of us. और आज की भाषा में हम इस वचन को ले सकते हैं उन सारे लोगों के लिए जो किसी दफ्तर में काम करते हैं या जो कोई काम कर रहे हैं, या शायद आप एक विद्यार्थी हो, आप पढ़ रहे हो, हम सबके लिए ये वचन है। Verse 22, 23, 22 to 25 we can read, brother, in Hindi. कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 22 से लेकर 25। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के सामने समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। See, just think of this word that is written, verse 23. Whatever you do your work heartily as unto the Lord and not for men. और 23 वचन में देखिए क्या लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। I believe in all that we do, maybe sisters working in the kitchen, children studying, young people studying or working, God is watching whether we are doing a task with all our heart as unto the Lord. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, चाहे बहनें हो जो रसोई घर में काम करते हैं, या बच्चे हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम सबको परमेश्वर देख रहा है कि हमारा जो काम, हमारी जो जिम्मेदारी है, हम अपने पूर्ण हृदय से उसे ऐसा कर रहे हैं क्या मानो हम प्रभु के लिए कर रहे हो। See, I want to tell you that whatever we do, even when we are washing vessels, actually we are doing it for the Lord. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम जो कुछ कर रहे हैं, चाहे हम बर्तन ही क्यों ना मांज रहे हो, हम प्रभु के लिए वो कर रहे हैं। See, when I was working, I was a teacher, and when I was working, one particular story which I heard about a small boy, he was polishing the shoe of a particular person. और जब मैं काम कर रहा था, मैं एक शिक्षक था, तब मैंने कहानी सुनी थी कि एक छोटा लड़का किसी के जूतों को पॉलिश कर रहा था। And he was doing it with such an effort, with such a sincerity, that man afterwards asked, why are you doing it so sincerely, so faithfully?
वो इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी ईमानदारी से उसे कर रहा था कि बाद में उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि तू इतनी ईमानदारी से ये क्यों इसको पॉलिश कर रहा है? And the answer he said is, every shoe I get, I think it is the Lord's shoe, and I do it for him. और उसने उत्तर ये दिया कि प्रत्येक जूता जो मेरे पास आता है पॉलिश करने के लिए, मैं सोचता हूँ कि वो स्वयं प्रभु का जूता है और मैं मानो उसके लिए वो कर रहा हूँ। And I believe that is the way God wants us to work when we study or when we are washing vessels in the kitchen or whatever we are doing. और मेरा विश्वास है कि प्रभु चाहता है कि इस तरीके से, इस रीति से हम काम करें। हम शायद चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बर्तन साफ कर रहे हो। It is written, there is no partiality with God. और वहां लिखा है कि परमेश्वर के साथ पक्षपात नहीं है। I heard of an illiterate man called Lawrence, Brother Lawrence, who lived, I think, in almost 300 years ago. और मैंने एक अनपढ़ व्यक्ति के बारे में पढ़ा है जिसका नाम था ब्रदर लॉरेंस। शायद 300 वर्ष पहले वो जीते थे। Now there was a book which somebody conversed with him and wrote, that is practicing the presence of God. और किसी ने केवल उनसे बातचीत करके एक किताब लिखी, वो है परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना। And one particular sentence struck me when I read that book. और जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो उसमें से एक वाक्य है जो मेरे साथ रहा, मुझे बहुत प्रभावित किया। And it is written like this. He said he was a cook in a monastery. You know, those days Protestant movement was not there. Only Catholic system was there. और वो एक खाना बनाने वाला था एक मोनास्ट्री में। उस समय पेंटिकॉस्टल लोग नहीं थे, प्रोटेस्टेंट system, केवल कैथोलिक लोग हुआ करते थे। So he said that when I wash vessels in the kitchen monastery, I experience the same presence of God, which I experience when I take bread and wine in the Lord's table. और उन्होंने कहा कि जब मैं बर्तन मांजता हूँ उस मोनास्ट्री में, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को वैसे ही अनुभव कर पाता हूँ जैसे मैं प्रभु भोजन के समय उस रोटी और प्याले में हिस्सा लेते हुए महसूस करता हूँ। I believe God is looking for such people. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है। This is my desire, Lord. When you look all around the world for those whose hearts are completely God's, Lord, I want my heart to be like that. ये मेरी चाहत है कि प्रभु जब तू इस संसार में खोजता है ऐसे लोगों के लिए जिनके हृदय पूरी तरीके से तेरे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय वैसा हो। Such people he will support in whichever way possible. ऐसे लोगों को जैसे संभव हो वो उनका समर्थन करेगा। Let us become such people. आइए हम भी ऐसे लोग बने।